A very good morning, everyone. Students, as you know that we are taking chapter number 1, and in this chapter we are reading about understanding diversity. So you have already seen that diversity is differences in the languages, differences in foods, differences in festivals, difference in reasons, religions. Okay, these all are diversities. These differences are called diversities. Now I have given you a homework. Have you remembered? I have told that you have to you have to do making friends homework. On page number 4 there is a story of Samir 1 and Samir 2, and you had to read that story, and today's class I will discuss story because I have given homework to you. Now I am going to start the topic diversity in India. Okay, so as you know that our India is a large country, and here there are so many diversities. Here there are so many 28 states, 8 union territories, है ना? And all these states have their different languages. Punjabi people speak Punjabi language. The people of Karnataka speak Kannada, and everyone, those all the people celebrate different festivals. They celebrate different religions, है ना? Muslim celebrates Ramjan, Hindu celebrate Dashehra. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि हम जो भी करते हैं दैट आर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिमिलर होता है. हम भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है. हम भी फूड खाते हैं, वो भी खाते हैं, बस क्या होता है, तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है. डिफरेंट वेज, जो तरीके होते हैं सेलिब्रेशन का, वो अलग होता है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? क्वेश्चन है कि आप डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे. A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horse, on camels or on foot. देखो, अराउंड 200 ईयर्स अगो और उससे भी पहले पीपल यूज टू ट्रेवल. वो कैसे ट्रेवल करते थे? ऑन कैमल्स और ऑन फूट्स, ऑन हॉर्स, ऑन इन शेप्स, ठीक है. फिर धीरे धीरे बस, कार, एरोप्लेन, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड आते गए, तो ये चेंज होता गया धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग. List at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answers have been provided for you already. देखो, अब आप इस एक्टिविटी को देखिए. Different ways in which people pray. Those singing a hymn. Through singing a hymn. इसका मतलब समझ रहे हो कि जो लोग प्रे करते हैं, everyone used to do pray, but I already told that the way they do that is different. Most of the people do similar things, but the way they do is different. For the example, Hindu क्या करते हैं? We just sit before our God and start chanting mantras, start singing bhajan, ठीक है. But what about the Muslim? क्या वो भी मंत्र बोलते हैं या फिर मुस्लिम भी भजन गाते हैं? नो. वो अपने दोनों हाथ को जोड़ करके, सर झुका करके, है ना, हेड बो डाउन करके, वो क्या करते हैं? रमज़ान पढ़ते हैं, जो भी उनका तरीका है. क्रिश्चियनिटी में आपने देखा है ना वो कैसे करते हैं, एंड सिखिज़म, ठीक है. तो ये अलग अलग तरीका होता है अपने अपने प्रे करने का. अगेन डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड. For the example,
मैरिड के केस में देखो, हिंदू जो होते हैं उनकी मैरिज, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाता है, वो चर्च में जाते हैं, दोनों लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती है, चर्च में होती है जो उनके लोग होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहीं कहीं पे शादी मैरिज जो होती है वो कोर्ट में रजिस्टर किया और शादी हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो यू हैव टू डू इट, आप इसको करो, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करिए खुद से करने की। Often they went in search of new lands or new place to settle in or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. तो मैंने आपको बताया अभी कि people used to about 100 or 200 years ago people used different mode of transport, but धीरे धीरे वो जो है वो चेंज होता गया ट्रांसपोर्टेशन मोड। अच्छा, फिर क्वेश्चन है कि वो लोग क्यों अलग अलग क्यों ट्रैवल करते थे? बिकॉज ऑफ दी, अगर उनको किसी नए लैंड को सर्च करना था या किसी नए लैंड पे सेटल होना है या ट्रेड करना है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। कुछ लोग अपना घर छोड़ देते थे जब कभी ड्रॉट्स और फेमिन्स, अकाल या सूखा पड़ता था। तो इस तरह से क्या होता था, जब कभी युद्ध, इन द केस ऑफ वॉर, ठीक है, या इन सर्च ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन सर्च ऑफ, so there are so many reasons why people left their village, left their homes. Sometimes as they began to make their homes in new place, people began to change a little, or other times they managed to do things in the old ways. सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक। देखो अब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब जाने से क्या होता है कि क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा आखिर किस रीजन से लोग चेंज करते हैं, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाते हैं, और इसका रीजंस क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। मतलब कि इन सब की वजह से उनके जो लैंग्वेज है, उनकी फूड, म्यूज़िक, रिलीजन्स, ये सब क्या होते हैं, वो मिक्सअप होते हैं जब वो दूसरे कल्चर में जाके इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर या तो वो कुछ नया सीखते हैं या फिर कुछ डिफरेंट होता है, वो ओल्ड को छोड़ देते हैं, वो अपनी पुरानी चीज़ों को मेंटेन करके भी रखते हैं, छोड़ते भी हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, तो क्या होता है, हमारी लैंग्वेज एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, हमारा फूड, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, है ना, म्यूज़िक, रिलीजन्स, बहुत कुछ चेंज होता है, दोनों के आइडियाज़ चेंज होते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, और फिर इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि इससे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, जब लोग मिक्स होते हैं तो उसका क्या होता है ना, कल्चरल चेंज होता है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ। इन सब से क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है वहाँ पे हमारा कल्चरल चेंज होता है, क्लियर। एंड we got various diversity, we got various differences in music, religion, food, clothes, dressing, in everything we we became very diverse because of this change in culture. Similarly, diversity also comes about when people adapt their life to the geographical areas. कभी कभी क्या होता है, सपोज during summer break you go to the sea, you go to visit mountain area। तो जब आप माउंटेन एरिया में जाते हैं तो आप प्लेन एरिया के रहने वाले हो, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, एंड यू गो टू द माउंटेन एरिया, तो आपका जोग्राफिकल एरिया जो था वो चेंज हो गया, और चेंज होने की वजह से क्या होता है कि आप उस जगह को एडेप्ट करते हो, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को, उस जोग्राफिकल एरिया में जो भी चीज़ें होती है आप उसको एडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है।
अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। नॉट ओनली टू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग। आप देखते हो कि माउंटेन एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, ना केवल उनका नॉट ओनली देयर क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। देन इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली cities, how closely people's lives are tied and their physical surroundings। तो अब आप यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाते हो कि जैसे जहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन होती है, अकॉर्डिंग टू दैट पीपल्स फूड हैबिट्स, पीपल क्लोथिंग, है ना, दिस ऑल थिंग्स आर देयर एक्टिविटीज़, दिस ऑल थिंग्स आर चेंज्ड, उसके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। This is because in this city people seldom grow their own vegetables and grain. They depend on the market too. ठीक है, तो ये है। अब आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है लद्दाख की स्टोरी को, कि कैसे एक हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स में चेंज होने से क्या चेंज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया एंड लुक एट केरला एंड लद्दाख। देखो ये है इंडिया का मैप, ठीक है ना, कुछ ऐसी है ना इंडिया का मैप। तो ये क्या है, साउथ इंडिया में ये केरला है, ओके। अब केरला में आप देखोगे तो व्हाट काइंड ऑफ फूड द पीपल यूज टू ईट, व्हाट ड्रेसेस दे यूज टू वेयर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे यूज टू डू, ठीक है। और पहले हम केरला की बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि डिफरेंसेस कैसे हैं। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। केरला जो है ये साउथ इंडिया हुआ, ठीक है। तो ये केरला है आपका, तो ये साउथ वेस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, तो साउथ वेस्ट में आ गया, यहाँ पे आया, ठीक है। फिर इट इज़ सराउंडेड बाय द सी। इसके एक तरफ सी है, इधर पे अरेबियन सी है, यहाँ पे ये केरला है, क्लियर। एंड हिल्स, और इधर क्या है, हिल्स है। अब एक तरफ सी है, दूसरी तरफ हिल्स है। नंबर टू देयर आर a number of spices like pepper, cloves and cardamoms। वहाँ पे क्या है, spices हैं, ठीक है। आपने जोग्राफिकल देखा डिफरेंसेस। अब देखोगे कि स्पाइसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलती, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में केरला में मिलती हैं। सो इट इज़ स्पाइसेस दैट attract the people for the it is spices that made this region an attractive place for traders। एंड केरला की एक और स्टोरी है कि यहाँ पे जेविस एंड अरब ट्रेडर्स फर्स्ट टाइम आए थे केरला में। जेविस कौन होते हैं, इज़राइल पीपल को जेविस कहा जाता है, ठीक है। तो वो और अरब ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आए थे। एंड द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो। ये ऐसा बिलीव किया गया कि एक सेंट थे, सेंट थॉमस, यहाँ पे 2000 ईयर्स अगो केरला में आए थे, और वही क्रिश्चियनिटी रिलीजन को लेके केरला में आए थे, ठीक है। बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स थे, ठीक है, अरब ट्रेडर्स also came and settled down here in Kerala। There is a traveler that came from Africa. His name was Ibn Battuta, who also came before 700 years ago, and he write a ट्रेवेलॉग यानी ट्रेवलिंग अकाउंट वो एक लिखता है, जिसमें वो मुस्लिमों की, केरला में मुस्लिम्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में वो लिख के यहाँ पे जाता है। एंड ही से दैट देयर वेयर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और यू ऑल्सो सी दैट वन द पोर्टुगीज़ मतलब जो पुर्तगाल, जो यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल है, वहाँ से भी लोग आए थे। उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था, और वो सबसे पहले इंडिया के केरला में ही आए थे, कालीकट में। वास्को डिगामा इंडिया को डिस्कवर करने वाला सी रूट से फर्स्ट कौन था, दैट वॉज वास्को डिगामा, एंड ही वॉज फ्रॉम पुर्तगाल, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हो कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स।
अब देखिए कि कितना डिफरेंस आपको मिल रहा है केरला में, कि पहले ये जेविश एंड अरब ट्रेवलर्स आए थे, यहाँ पे स्पाइसेस हैं, क्रिश्चियनिटी रिलीजन आया, यहाँ की लोकेशन कितने डिफरेंट है, क्लियर। फिर यहाँ पे अरब ट्रेडर्स भी आए थे, इब्न बतूता आया था, क्लियर। So, because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions. तो इतने सारे लोगों के आने से वहाँ पे केरला में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स जो है उसकी प्रैक्टिस उसको फॉलो किया जाता है। जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बौद्धिज़्म, दिस ऑल रिलीजन्स आर प्रैक्टिस्ड इन केरला। द फिशिंग नेट्स, क्योंकि बगल में सी है, अरेबियन सी, तो वहाँ पे द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग। तो वहाँ पे जो फिशिंग नेट होती है, मछली पकड़ने के लिए जो नेट यूज़ होता है, दैट वाज एग्जैक्टली, वो कैसा दिखता है, जैसा लगता है कि वो चाइना का बना हुआ चाइनीज़ नेट है। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, ठीक है, उसको चीना वाला नेट कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल्स, जो वहाँ बर्तन यूज़ होते हैं जिसको चीना चट्टी का बर्तन कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो पॉटर्स जैसे चाइनीज़ बनाते हैं ना, वैसा कुछ उससे सिमिलर है। ओके, द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल। और वहाँ पे जो फूड है वो फूड कैसा है, राइस एंड फिश। सो दिस इज़ द culture of the Kerala. But when we talk about the Ladakh, so as you know that Ladakh is a desert, but this desert is found in the mountain area, and in which state it is in Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर में जो desert है, it's a cold desert and it is found in mountain area. So desert area में you already know little agriculture is not very possible because there is very less rainfall. That area is covered with the snow, so there are very few trees that grow there. And for drinking water, what happened, people depend on the melting snow during the summer months. जब समर में स्नो मेल्ट्स होता है, वहाँ से जब पानी मिलता है तो पीपल लोगों को वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। पीपल हियर के, अब देखो यहाँ ये तो हमने क्या देखा कि वहाँ की जोग्राफी कैसी है, और हमने देखा, ठीक है, जोग्राफी कैसी है। फिर हम देखेंगे कि फिर वहाँ के लोगों के बारे में। तो वहाँ के लिए लोग देखो, पीपल ऑल्सो हियर कीप शीप एंड गोट्स। वहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि वो कोल्ड एरिया है, तो वहाँ पे लोग क्या रखते हैं, शीप एंड गोट्स। नेक्स्ट, द गोट्स इन दिस रीजन आर वेरी स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। पश्मीना वूल, ठीक है, ये लद्दाख में जो गोट्स हैं, जो शिप्स हैं, उनसे पाई जाती हैं। And so this wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. अब वहाँ के जो लोग हैं उस बकरी से पश्मीना शॉल बनाते हैं, पश्मीना वूल बनाते हैं और उसको ऑल ओवर द कंट्री सेल करते हैं। इसकी वजह से पश्मीना शॉल जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल आप जाओगे तो जब भी जाओ वहाँ से खरीदिए, बहुत ही गर्म होता है। अगेन द पीपल, अब लोग वहाँ खाते पीते क्या है, द पीपल इट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स के नाम पे क्या है, काऊ एंड बफेलो तो है नहीं, तो क्या है वहाँ पे, sheep and goats. And so people used to eat milk and meat of these animals, and each family owns some goats. हर एक फैमिली के पास कुछ गोट्स है, काउज है ना। एंड इसको बोलते हैं DZOS को, डिजोस कह सकते हो, जिसको याक काउज कहा जाता है, ठीक है। सो सिंस लद्दाख इज अ डेजर्ट एरिया, सो व्हाट हैपन्स, वहाँ पे क्या होता है, लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट ट्रेडर्स। वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए तो लोग जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज लद्दाख में ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशंस। इतनी कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे, स्नो कवर्ड एरिया है, कोल्ड डिजर्ट है, तो वाई पीपल विल यूज टू गो देयर, ठीक है। सो इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। अब यहाँ पे क्या होता था
कि इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। ये ट्रेडिंग रूट था, मतलब यहाँ पे लोग जाके ट्रेड करते नहीं थे, बल्कि ये दूसरे जगह तक पहुँचने का एक ट्रेड रूट था, जहाँ से बहुत सारी पासेस होती थी। पासेस मतलब माउंटेन्स के बीच में छोटे छोटे कुछ गेट्स बने होते हैं, ठीक है, नेचुरल गेट्स बने होते हैं, जिससे हो के ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ट्रेवल करते हैं। और वो कहाँ जाते थे? तिब्बत जाते थे। तिब्बत, वेयर इज तिब्बत? तिब्बत इज़ इन चाइना, ठीक है। सो वहाँ पे जाते थे लद्दाख के पासेस से होकर के। पासेस को हिंदी में दर्रा बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस कारवास कैरिड, और वो अपने साथ टेक्सटाइल और स्पाइसेस लेके जाते थे, रॉ सिल्क, ये सारी चीज़ें वो लेके जाते थे। वहाँ पे द रिलीजन दैट इज़ फॉलोड देयर, बौद्धिज्म, clear, Buddhism religion. Islam is also present there, so there are two religions, okay. Ladakh has a very rich oral traditions. लद्दाख के जो लोग हैं वो songs and poems, वहाँ की जो cultural traditions हैं, that is very rich. जो वहाँ के local people हैं वो लोग क्या करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, वो लोग वहाँ पे केसर साग जो बुक है उसको पढ़ते रहते हैं। मतलब ये है, दिस इज़ ऑल ओवरऑल अबाउट द लद्दाख। सो while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar. आप देखो दोनों की हिस्ट्रीज जो है वो सेम है। कैसे? आप लद्दाख में देखो कि पीपल यूज टू ट्रेवल, यूज्ड लद्दाख एज अ ट्रेड रूट टू गो टू द तिब्बत, ठीक है। तिब्बत जाने के लिए वो सारा सामान लेके उसी रास्ते से जाते थे, तो उसकी हिस्ट्री है, क्योंकि एंशिएंट पीपल में लोग उस रास्ते का यूज़ करते थे। केरला में क्या होता था? केरला में पोर्टुगीज़ आए, अरब्स आए, जेविस आए, बहुत सारे लोग आए वहाँ पे। बोथ रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़, ठीक है। चाइना, क्योंकि तिब्बत जाना था तो तिब्बत चाइना में है, तो वो लद्दाख से होते हुए जाते थे चाइनीज़ तिब्बत के लिए। एंड अरब ट्रेवलर्स। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन. So the influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present life is all about moving from. इस तरह से आप देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने से कितनी डिफरेंसेस मिलती हैं, चाहे जोग्राफी के बेस पे हो, हिस्ट्री के बेस पे हो, या फिर लोगों के कल्चरल और उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस में जो भी डिफरेंसेस हैं. सो दिस all diversities add so many things in our life. I will continue this topic from tomorrow. Thank you.